Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fourth module of the topic number system. In today's module, we will learn about remainder theorem. Now this is an important topic and this is a topic which we are not learnt in the school. So this is a new concept for all of you and it's an easy topic, but it's a new concept because this is something which we are not studied in the school. So let's start with the topic remainder theorem. It's an interesting and easy topic. So first, let me share the screen with you. Okay. So the topic is, as I told, it's a remainder theorem. So first of all, let's understand कि remainder होता क्या है. What is the meaning of the word remainder? So the remainder is something that is left over after the calculations. So remainder is something which is extra. Example, 21 chocolates are to be distributed among 5 students equally. So we have 21 chocolates and we have 5 students. We need to divide them equally among the students. Then all the students will get 4 chocolates and 1 chocolate will be left. So this one is called the remainder. ठीक है? I'm sure आपको स्कूल में ये हम सबने पढ़ा है. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. अच्छा, इसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, देख लेते हैं एक बार. सो इफ आई हैव टू डू 26 डिवाइड बाय 5, अगर ये करना है, so 26 डिवाइड बाय 5, वी नो दैट हियर विल राइट 5, 5 5 आर 25, so this is 1. इसमें ये जो 26 है उसको कहा जाता है डिविडेंड. जिससे भी डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर. The value which we write here is called quotient, and the one which is remained, that is definitely it's called remainder. Okay, so from this I can say that इस particular figure से, इस particular expression से हम ये कह सकते हैं कि 26 is equal to 5 into 5 plus 1, correct? So here 26 is the dividend, so we can say that dividend is equal to, ये जो 5 है ये कौन है, डिवाइजर. दूसरा वाला 5 है क्वोशिएंट and plus remainder. ठीक है? So this is and important thing, this you should all know this, that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. अच्छा, one more thing we need to keep in mind, that whenever we divide the number, this remainder should always be less than the divisor. मतलब यहाँ पर डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर 5 या फिर 5 से ज्यादा नहीं हो सकता. इन दिस पर्टिकुलर केस रिमाइंडर कैन बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4. इट कैन नॉट बी 5, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5. So remainder is always less than the divisor. So write this formula and also write this, the remainder should always be less than the divisor. This we need to keep in mind. Okay. Now, what is the property of the remainder? The remainder, as I told you, the remainder is always less than the divisor. कभी भी अगर आपका remainder divisor से बड़ा आ जाता है, it means we have made some mistake. A remainder that is either greater than or equal to divisor indicates that the division is incorrect. If the number that is divisor divides another number that is dividend completely, then the remainder is 0. For an example, we know that 24 is completely divisible by 4. So here 24 is the dividend and 4 is the divisor. और इस केस में क्योंकि remainder कुछ भी नहीं आ रहा है, so we can say that 24 is completely divisible by 4. Okay, now let's start with the topic remainder theorem. So if we need to find that if we'll divide 129 by 15, then what is the remainder? So if we'll do 129 divided by 15, तो remainder क्या होता है? We know that 15 8s are 120, so remainder is 9. ठीक है? Similarly, if we have to do 123 divided by 15, we know that the remainder is 3. But अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए that 129 plus 123 divided by 15, then what is the remainder? So one method is that कि आप इन दोनों को add कर दो, divide by 15 करो and check what is the remainder. But here we will use the property, we will use the remainder theorem. So what we will do is,
हमें पता है कि 129 को अगर 15 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 9 आता है, तो इन प्लेस ऑफ 129 वी विल राइट 9. Similarly, we know that when we divide 123 by 15, we get the remainder as 15, sorry, remainder as 3. So instead of 123, we will write 3. Here there is plus ka sign, so here also I will put plus ka sign. So 9 plus 3 is equal to 12. So answer is 12. ठीक है, तो ऐड नहीं करना है. What property actually I am using is that कि suppose there is a number which is n1 and I am dividing that number by p and I am getting the remainder as n1. मतलब n1 को अगर हम p से ऐसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r1 आता है. Similarly, there is another number n2 और उसको भी हम p से डिवाइड करते हैं and the remainder is getting what we are getting as r2. In that case, if I add both this dividend n1 plus n2 और अगर उसको p से डिवाइड करना है then the remainder is simple r1 plus r2. If it is n1 n1 minus n2 then the remainder is r1 minus r2, and if the number is n1 into n2 then the remainder is r1 into r2. ठीक है. सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि 129 माइनस 123 डिवाइड बाय 15 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा. सो वी नो दैट 129 माइनस 123 6. 6 डिवाइड बाय 15 इफ विल डू देन वी गेट द रिमाइंडर इज 6. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 129 डिवाइड बाय 15 इफ विल डू देन द रिमाइंडर इज 9. 123 डिवाइड बाय 15 रिमाइंडर इज 3. Here there is a minus ka sign, so here also we'll put minus ka sign. Remainder is 6. Now, the biggest problem comes when there is a multiplication sign. So suppose someone asks you that what is 129 into 123? If we divide this number by 15, then what is the remainder? Definitely हम 129 into 123 नहीं करेंगे, divide by 15 नहीं करेंगे. What we will do is 129 divided by 15, remainder is 9. 123 divided by 15, remainder is 3. यहाँ पर multiplication का sign, so here also multiplication का sign, so remainder is 27. But we know that here the divisor is 15, so remainder can never be greater than or equal to 15. Remainder 15 से छोटा ही होना चाहिए. बट इस केस में रिमाइंडर तो 27 आ गया, तो क्या करेंगे. कोई बात नहीं, एक बार और डिवाइड कर दो. 27 by 15 करो. So if we'll do 27 by 15, we know that the remainder is going to be 12. So here the answer is 12. ठीक है. We'll solve some more questions, so we'll understand more about this theorem. 911 plus 912 plus 912 plus 914 divided by 909. Once again, I am not going to add all this number. हमें क्या करना है. 911 इन सबको हम 909 से डिवाइड कर देंगे ऐसे. ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तब यूज करना है जब आपको रिमाइंडर निकालना है, और कहीं ऐसा आप यूज नहीं कर सकते. सो इफ विल डू 911 डिवाइड बाय 909, वी नो दैट द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 2. 912 divided by 909, remainder is 3. 912 divided by 909, remainder is 3, and here the remainder is 5. बस आपको इनको ऐड कर देना है. So 2 plus 3 हो गया 8, and 8 plus 5 13. So remainder is 13. Answer is 13. ठीक है. नेक्स्ट 911 इंटू 912 इंटू 912 इंटू 914. डिफरेंस सिर्फ इतना था कि यहाँ पर प्लस था एंड हियर एवरीवेयर इट इज मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पर हर जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन. इन सबको हम उसके रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे. विल पुट मल्टीप्लीकेशन का साइन. 2 into 3 6, 6 into 3 18, and 18 5 are 90. So remainder is 90. क्या 90 रिमाइंडर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज द डिवाइजर इज वेरी बिग नंबर. Next, 18 into 19 into 20 into 21. Now this is an interesting question. इसको क्या करेंगे? Divide by 36. ठीक है. What we will do here is कि क्यों ना ये 20 को 10 बना देते हैं और इस 18 को 36 बना देते हैं. ठीक है, कर सकते हैं ऐसा. यस, बिल्कुल. सो दिस इज नथिंग बट 36 into 19 into 10 into 21 divided by 36. ये 36 तो कैंसिल हो गया. इट मीन्स दैट दिस नंबर, ये जो ऊपर वाला नंबर है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 36. तो कोई भी 36 का मल्टीपल तो 36 से डिवाइड हो ही जाएगा. सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस नंबर is completely divisible by 36.
So remainder is 0. Simple. Next. This is very important. That is called cancellation concept. So I want to divide 11 into 13 into 15 into 17 को 22 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है. Now here I can see that this is 22. So 22 can be written as 2 into 11. ऐसे लिख सकते हैं. Why I am writing this as 2 into 11? Because in the numerator I can see that there is a number 11. ओके तो ये 11 11 को कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट याद रखो कि ये जो हम कर रहे हैं ये हम हमारे कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, सो दैट आवर कैलकुलेशन बिकम्स इजी. बट हमें ये याद रखना है कि हमने डिवाइड किया था, दोनों जगह पे 11 से डिवाइड किया है. दिस वी नीड टू कीप इन माइंड, क्योंकि आगे जाके हमें इसे मल्टीप्लाई करना है. तो हमने क्या किया, फिलहाल डिवाइड बाई 11 किया है. ओके, so this we need to keep in mind. So now this has become 13 into 15 into 17 divide by 2. ठीक है. Now 13 divide by 2, remainder is 1. 15 by 2, remainder is 1. 17 by 2, remainder is 1. So remainder is 1 into 1 into 1, that is 1 only. But this is not the correct answer. क्यों? क्योंकि हमने 11 से डिवाइड किया था, तो आगे जाके हमें इसी चीज को वापस रिवर्स करना है, तो वापस 11 से मल्टीप्लाई करना है. सो 1 into 11 वी हैव टू डू, और डिनोमिनेटर में कहता किससे डिवाइड करना है, 22 से. सो इफ वी डू 11 by 22, वी नो दैट द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 11. करेक्ट. So this is the answer. So what we learned here कि अगर हम हमारी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अगर ऐसे कैंसिल करते हैं, तो आगे जाके एंड में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. नेक्स्ट. ओके, 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 को 92 से डिवाइड करना है, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट वुड बी द रिमाइंडर. So we know that 93 by 92, remainder 1. 94 by 92, remainder 2. 95 by 92, remainder 3. And 96 by 92, remainder 4. So it is 1 into 2 into 3 into 4, which is equivalent to 24. So remainder is 24. This is the answer. Next. 90 divided by 92. क्या आता है रिमाइंडर? जैसे कि अगर आपको करना है 90 by 92, रिमाइंडर क्या आएगा? इसको तो जीरो ही लिखना है, जीरो. सो रिमाइंडर इज 90 ओनली. ओके, तो रिमाइंडर इज 90. 91 divided by 92, once again remainder is 91 only. 93 by 92, remainder is 1. And 94 by 92, remainder is 2. तो अभी देखिए रहे हो आप कि ये 93 का तो 1 बन गया, 94 का 2 बन गया, बट 90 एंड 91 एज इट इज. तो क्या अभी ऐसा करेंगे 90 इंटू 91 डिवाइड बाई 92 करके चेक करेंगे? नो. हियर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर. What is the problem with this number is that कि ये जो नंबर है ये बड़े रह गए, छोटा नहीं हुआ. सो हमारी कैलकुलेशन इजी नहीं हो रही है. सो our job, our target is to make this number small. How we will do this? So here we'll use the concept of negative remainder. क्या रिमाइंडर नेगेटिव होता है? होता है, आज देखते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टू डू 23 डिवाइड बाई 4. सो स्कूल में हम 23 by 4 ऐसे करते थे. ठीक है, स्कूल में क्या ऐसे ही करना होता है. अच्छा, कैन वी डू लाइक दिस? 23 डिवाइड बाई 4 को ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज रिमाइंडर इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा. तो आइडियली रिमाइंडर नेगेटिव कैसे हो सकता है? जो चीज एक्स्ट्रा हो वो कम कैसे हो सकती है? सो दिस इज लॉजिकली रॉन्ग, बट टेक्निकली इट्स करेक्ट. कैसे कि जैसे अगर हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, 23 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 3. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. सिमिलरली इफ यू यूज द पुट द फॉर्मूला हियर, देन वी कैन से दैट 23 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 माइनस 1. क्या ये सही है? यस, टेक्निकली दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लॉजिकली बिल्कुल गलत है. रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं ही होना चाहिए, बट क्योंकि ये टेक्निकली सही है ना, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर डाल देते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज कि अगर हमें 90 को 92 से डिवाइड करना है,
So in two ways we can do. This is one wherein we are getting the remainder as 90, and this is the second method wherein we are getting the remainder as -2. Both these are technically correct. ये तो है ही सही, but ये भी सही है. But since this number is less, -2 बहुत छोटा number है, so we will put this number. So when we do 90 divided by 92, I will not write the remainder as 90. I will write the remainder as -2. Similarly, 91 by 92, I will write the remainder as -1. 93 by 92 remainder is 1, and 94 by 92 remainder is 2. So what we will do is -2 into -1 into 1 into 2, which is equal to 4. So remainder is 4. क्या ये मेथड सही है? बिल्कुल सही है. हमारा काम है रिमाइंडर को सबसे छोटा बनाना. नेक्स्ट, 91 इंटू 93 इंटू 94 डिवाइड बाई 92. तो सबको 92 से अगर हम डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 91 by 92 remainder we know it is -1. 93 by 92 remainder is +1, and 94 by 92 remainder is +2. So here the remainder is -2. But this is wrong. Why this is wrong? Because हमने तो हमारे कन्वीनियंस के लिए रिमाइंडर नेगेटिव बना दिया, बट आइडियली रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव. हो ही नहीं सकता कि रिमाइंडर नेगेटिव हो. तो आपको एग्जाम में ये -2 ऑप्शन दिखेगा ही नहीं. ऑप्शन में -2 लिखा हुआ ही नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. ये तो हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए माइनस माइनस लगा के खेल दिया है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, इस केस में हमें क्या करना है? वेन एवर योर रिमाइंडर कम्स नेगेटिव, सो वन थिंग यू नीड टू डू इज, ये जो डिवाइजर है 92, उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दो. सो 92 minus 2 दैट इज इक्वल टू 90. सो दिस इज द रिमाइंडर. 90 इज द रिमाइंडर. ठीक है. जैसे कि इस केस में भी आप देख रहे हो -2 रिमाइंडर था, दैट इज इक्विवेलेंट टू 90. सो इसमें भी -2 लिखो या 90 लिखो, इट इज वन इन द सेम. बट रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव, तो आप नेगेटिव वाला रिमाइंडर नहीं लिखोगे. नेक्स्ट, रिमाइंडर व्हेन 8 raised to 100 इज डिवाइडेड बाय 7. यानी कि 8 को हमें कितने टाइम्स लिखना है? 100 टाइम्स लिखना है. And if we do this divide by 7, so what is the remainder? So we know that कि 8 divided by 7 remainder 1, 8 by 7 remainder 1, 8 by 7 remainder 1. ऐसे 100 टाइम्स आएगा. सो 1 into 1 into 1 कितना टाइम्स आएगा? 100 टाइम्स. 1 into 1 into 1 अगर आप 100 टाइम्स भी लिखते हो, एंड में 1 ही आता है. सो 1 by 7 करोगे तो रिमाइंडर इज 1. सो आंसर हियर इज 1. नेक्स्ट, 6 raised to 100 divided by 7. यानी कि 6 को 100 टाइम्स लिखना है, 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? सो वी नो दैट कि 6 डिवाइड बाय 7 अगर हम करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है. एक तो ये आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, और दूसरा -1 आएगा. नाउ -1 इज स्मॉलर देन 6. -1 एक छोटा नंबर है कंपेयर टू 6, तो हम -1 लिखते हैं रिमाइंडर. सो व्हेन वी डू 6 डिवाइड बाय 7, द रिमाइंडर इज -1. -1 raised to 100 डिवाइड बाय 7. -1 raised to 100 कितना होता है? सो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 100 टाइम्स करना है. तो एंड में आंसर क्या होगा? तो एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी -1 raised to 100 ऐसा दिया, वेर एवर द पावर इज इवन, तो आंसर हमेशा +1 होता है. एंड इफ द पावर इज ऑड, जैसे कि -1 raised to 99 है, तो आंसर हमेशा -1 होगा. ठीक है. -1 के ऊपर आप कोई भी पावर लगा दो, इधर यू विल गेट द आंसर इज +1 और -1. +1 तब आता है इफ द पावर इज इवन, -1 तब आता है इफ द पावर इज ऑड. सिंस हियर द पावर इज इवन, तो आंसर -1 raised to 100 बन जाएगा 1. 1 divided by 7, we know that the remainder is 1. Next, 6 raised to 99 divided by 7. Once again, 6 divided by 7, we know that the remainder is -1. So -1 raised to 99 by 7. -1 raised to 99, now the power is odd. So answer होगा -1 by 7. So -1 by 7 का रिमाइंडर -1 होता है. बट वंस अगेन रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव, तो हमें क्या करना है?
7 - 1 करना है। 7 - 1 is 6, तो रिमाइंडर इज ऑप्शन 1, 6। ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पूरा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। 2 raised to 54 डिवाइड बाई 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? वी नो दैट 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो दो रिमाइंडर आता है, एक तो 2 आ जाएगा और एक -1 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ख्याल रखो कि आपका रिमाइंडर या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और मत बनाओ। बिकॉज कोई भी नंबर के ऊपर अगर हम पावर डाल देते हैं ना, बड़ी बड़ी पावर, तो वी कांट फाइंड द आंसर। बट 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दो, कोई भी पावर हो, या फिर -1 के ऊपर कोई भी पावर हो, आंसर +1 -1 ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। सो ट्राई टू मेक द रिमाइंडर इधर एज +1 और -1, दैट शुड बी द कॉन्सेप्ट। सो 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आई विल पुट द रिमाइंडर एज -1। सो -1 raised to 54 by 3. Power is even, so this is 1 by 3. So remainder is next. 2 raised to 54 divided by 5. Okay. Now, if I do 2 raised to 54 divided by 5, तो 2 by 5 करेंगे तो एक रिमाइंडर तो आता है 2, एंड दूसरा रिमाइंडर आएगा -3। पॉजिटिव रिमाइंडर 2, नेगेटिव रिमाइंडर -3। द थिंग इज दैट बोथ दिस नंबर्स आर बिग। इसके ऊपर अगर हम 54 की पावर लगा देंगे तो आंसर कहाँ से निकालेंगे? So once again, our job is to make the remainder as +1 or -1. But इस केस में तो नहीं बन रहा है। So what to do? Okay, so we know that 5 ones are 5 होता है, and ये जो नंबर 5 है ना, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो ऊपर वाला ये नंबर है ना, इसको 5 का नेबर बना देते हैं। 5 के नेबर कौन है? तो 5 का एक नेबर है 4 और 5 का दूसरा नेबर है 6। Why we are doing this? Because if I do 4 divided by 5, तो रिमाइंडर -1 आता है, एंड इफ आई डू 6 डिवाइडेड बाय, तो रिमाइंडर +1 आता है। आई वॉन्ट द रिमाइंडर टू बी इधर -1 और +1। मतलब ये जो 2 है ना, इसको या तो हम 4 बनाते हैं या फिर 6 बनाते हैं। तो क्या बन सकता है? सो वी नो दैट 2 raised to 1 तो 2 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, एंड 2 क्यूब 8 होता है। तो हम इसको 4 बना सकते हैं, 6 तो नहीं बना सकते, बट वी कैन मेक दिस एज 4। So 2 raised to 54 can be written like this: 2 raised to 2 into 27। 54 की जगह पे मैंने लिख दिया 27 into 2। ठीक है। So this can be written as 2 raised to 2 raised to 27, ऐसे हम लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो ये वाला, a raised to m into n can be written as a raised to m raised to n, like this. So 2 square is 4, so this is 4 raised to 27। 4 raised to 27 divided by 5. Now, when we do 4 divided by 5, our remainder is -1 raised to 27 divided by 5. That is equal to -1 by 5. So, -1 by 5 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है -1, but remainder can't be negative. तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया -1, but remainder नेगेटिव नहीं होता, तो 5 - 1 is 4. So, remainder is 4. This is the answer. One more example. If I do 2 divided by 7, so I will get 2 remainder. One remainder is 2 only, and other remainder is -5. Once again, ये दोनों रिमाइंडर बहुत बड़े हैं, हमको तो रिमाइंडर +1 या -1 बनाना है। कैसे बनाओगे? तो 7 के नेबर्स, 7 का एक नेबर है 6 और दूसरा है 8। तो या तो ये 2 को 6 बनाओ या 8 बनाओ। 2 का 6 नहीं हो सकता, बट वी नो दैट 2 क्यूब इज 8, तो उसको 8 बना सकते। इन शॉर्ट आपको क्या करना है? आपको ऐसे लिखना है 2 raised to 3, बिकॉज वी नो दैट 2 raised to 3 is 8। फिर 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18। दिस इज हाउ यू कैन राइट। 2 raised to 54 कैन बी रिटर्न एज 2 क्यूब raised to 18।
because 3 into 18 is 54. So this is 8 raised to 18 divided by 7. 8 divided by 7, remainder is 1. So it is 1 raised to 18 by 7. 1 raised to 18 is 1 only. So it is 1 by 7. So 1 divided by 7 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है 1. नेक्स्ट 2 raised to 54 by 11. वंस अगेन 11 के नेबर्स कौन है? तो 11 का नेबर्स है 10 एंड दूसरा है 12. तो हमको ये 2 को या तो 10 बनाना है या 12 बनाना है. बट हियर दूसरा प्रॉब्लम, बिकॉज वी नो दैट 2 raised to 1 2, 2 square, sorry, 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64. कहीं पर भी आपको 10 या 12 नहीं दिख रहा है, तो आप इसे 10 या 12 नहीं बना सकते. ये 2 को 10 या तो फिर 12 नहीं बना सकते. तो क्या करेंगे? Here we have to go one more step ahead. हमें क्या करना है? हमें ये तो पता है कि 2 का हम 10 या 12 नहीं बना सकते, लेकिन 2 को हम 2 4 8 16 32 64 ऐसा तो बना सकते हैं. और इसमें देखो कि ऐसा कोई नंबर है क्या कि जो कि 11 का मल्टीपल है या फिर 11 के मल्टीपल के आजू बाजू में है. सो हियर आई कैन सी वन नंबर एज दिस 32. 32 के पीछे आता है 33 विच इज मल्टीपल ऑफ 11. तो 33 का नेबर 32. सो हम 2 को 32 बनाने का कोशिश करेंगे. 2 को 32 बनाने का कोशिश करेंगे. तो दिस कैन बी राइट लाइक दिस 2 raised to 5. यहां पर क्या लिखेंगे? सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू 54 डिवाइड बाय 5. 54 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है एंड 50 एंड 4. ठीक है. सो इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि हियर राइट दिस क्वोशंट 10. ठीक है. तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 raised to 50 हो गया. करेक्ट. 2 raised to 5 और उसके ऊपर 10 का पावर. सो दिस इज 2 raised to 50. बट हमको 2 raised to 50 नहीं चाहिए, हमको तो 2 raised to 54 लिखना है. तो वापस 2 raised to 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. इस पर्टिकुलर वीडियो को आप बार बार देखोगे तभी जाके समझ में आएगा. ये इतना इजी नहीं है, वैसे तो इजी है बट पहली बार जब आप कर रहे हो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. डिवाइड बाय 11. 2 raised to 5 कितना होता है? 32. So this is 32 raised to 10 and 2 raised to 4 16. Now if I do 32 divided by 11, the remainder is -1. So this is -1 raised to 10 into 16 by 11. -1 raised to 10 is 1. 1 into 16 is 16 only. So it is 16 by 11 if we'll do, then the remainder is 5. Next, 2 raised to 54 divided by 13. Once again we'll do the same thing. 13 के जो neighbors है वो है 12 and 14. But we cannot make 2 as either 12 or 14. तो हम देखते हैं कि 13 का कोई भी मल्टीपल और 2 का कोई भी पावर साथ साथ चल रहे हैं क्या. सो वी कैन सी दैट कि 2 raised to 6 is 64 and 13 5 are 65. तो 64 and 65 are neighbor. तो ये 2 को हमें 64 बनाना है. मतलब कितना बाहर ले लेना है? 2 raised to 6. तो 2 raised to 54 can be written as 2 raised to 6 raised to 9 because 6 into 9 होता है 44. Sorry, 54 divided by 13. 2 raised to 6 is 64. So this is 64 raised to 9 divided by 13. 64 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है -1. So it is -1 raised to 9 by 13. -1 raised to 9 is -1 by 13. So remainder is -1. But remainder माइनस नहीं हो सकता. So we have to do is 13 minus 1. So remainder is 12. This is the answer. Next. 2 raised to 54 divided by 26. Now 26 के नेबर्स है 25 and 27. बट 2 को ना तो हम 25 बना सकते हैं ना 27 बना सकते हैं.
सेकंड थिंग, आप यहां पर देख रहे हो 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसमें से कोई भी नंबर ना तो 26 के आगे पीछे है, ना 26 के मल्टीपल के आगे पीछे है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, कि 2 रेस टू 54 डिवाइड बाई 26, अगर इस 26 को अगर हम 13 बना दे तो हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज 2 रेस टू 54 डिवाइड बाई 26 कैन बी रिटर्न एज 2 रेस टू 53 इंटू 2 डिवाइड बाई 26 की जगह पे हम लिख देंगे 13 इंटू 2, 2 उड़ा दिया है, सो दिस इज 2 रेस टू 53 डिवाइड बाई 13। 13 है तो उसको ऊपर हम 64 बनाने का कोशिश करेंगे, तो 2 को 64 बनाएंगे, इट मीन्स कि 2 रेस टू 6 लिखना है। सो हियर वी विल राइट 8, क्योंकि 53 डिवाइड बाई 6 करते हैं तो क्वोशंट आता है 8, बट ये तो सिर्फ 48 बन रहा है, दिस इज 2 रेस टू 48। हमें तो 2 रेस टू 53 लेके जाना है, तो 2 रेस टू 5 और जोड़ना है डिवाइड बाई 13। Now, 2 raised to 6 को we can write as 64. So this is 64 raised to 8. 2 raised to 5 can be written as 32 divided by 13. Now, 64 divided by 13, we know that the remainder is -1. So this is -1 raised to 8. And 32 divided by 13 करते हैं तो remainder 6 आता है. -1 raised to 8 is 1 only. 1 into 6, so it is 6 by 13. लेकिन लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था, तो अगर 2 से डिवाइड करते तो एंड में 2 से मल्टीप्लाई करना भी जरूरी है, तो यहाँ पर वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 2 इज 12। 12 डिवाइडेड बाई 13 करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आ जाएगा 12। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू 21 इज डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 3 को 9 बना देते हैं। 3 को 9 बना देते हैं। कैसे बनाओगे 3 का 9? So this can be written like 3 square raised to 10 into 3. 3 raised to 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं, divide by 5. 3 square is 9. So this is 9 raised to 10 into 3 divided by 5. 9 divided by 5 करोगे तो रिमाइंडर वी नो की -1 आता है, सो -1 raised to 10, एंड 3 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो रिमाइंडर तो 3 ही आ जाएगा। तो -1 raised to 10 is 1, 1 into 3, so it is 3 divided by 5। 3 divided by 5 करेंगे तो रिमाइंडर इज 3। तो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3। Find the remainder. 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial till 100 factorial. Okay. We know that 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial 6, 4 factorial 24, 5 factorial 120, 6 factorial कितना होगा? So it is 6 into 120, that is equal to 720. आगे जाके जितने भी आप फैक्टोरियल लिखोगे, कितने भी इनफाइनाइट तक, कैन वी से दैट कि ऑल दिस नंबर विल एंड विद 0? ठीक है, so when the number ends with 0, can we say that all those numbers which ends with 0 are divisible by 10? करेक्ट, हर वो नंबर जो कि 0 से एंड करता है वो 10 से तो डिवाइड कर ही देगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबको 10 से डिवाइड करना। वी नो दैट कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है, तो ये तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। सिमिलरली हियर ऑल्सो रिमाइंडर इज 0। तो ऐसे ऐसे करते करते हर जगह पे 0 आएगा। So from 5th factorial, everywhere we will get the remainder as 0. So 1 factorial की वैल्यू 1, 1 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर इज 1। 2 factorial is 2, 2 divided by 10, remainder is 2. 3 factorial 6,
6 डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर इज 6। 4 फैक्टोरियल इज 24, तो 24 डिवाइड बाय 10 करोगे तो रिमाइंडर 4, और आगे तो हर जगह पे रिमाइंडर 0 ही होने वाला है, और इसको 10 से डिवाइड करना है। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 3 13, so it is 13 by 10, 13 by 10 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, there is something called as Fermat's little theorem. This is very simple. What the theorem is saying that a raised to p minus 1 divide by p, अगर ये करना है तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। कंडीशन इज दैट कि p शुड बी अ प्राइम नंबर, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर प्राइम नंबर लिखा है और न्यूमरेटर में पावर एक कम है, यानी कि इफ हियर इट इज p देन हियर इट शुड बी p minus 1, अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो आप आंख बंद करके 1 लिख सकते हो। जैसे कि इस केस में you can see that the remainder is a prime number, sorry, divisor is a prime number, so this is a prime number। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो ऊपर पावर एक कम होना चाहिए। सो हियर इट इज 17, सो हियर इट हैज टू बी 16, और इस केस में 16 ही है, तो आंख बंद करके आंसर इज 1। ठीक है, तो ये फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम कब लगाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिवाइजर शुड बी अ प्राइम नंबर एंड पावर में एक नंबर कम होना चाहिए कंपेयर टू डिवाइजर। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप आंख बंद करके रिमाइंडर यू कैन राइट एज नेक्स्ट 2^32 डिवाइड बाय 17, तो ये तो था 2^16 by 17, but here it is 2^32 by 17। now we know that कि this 17 is a prime number, but the problem is कि यहाँ पर 16 नहीं लिखा है, 32 लिखा है। 16 होता तो बात बन जाता, तो कोई बात नहीं, इसको 16 बना देते हैं 32 को। कैसे करेंगे? 2^32 can be written as 2 square raised to 16 by 17। 2 square is 4, so it is 4^16 by 17। now we can apply the Fermat theorem। this is the prime number, 17 minus 16 एक ही का डिफरेंस है, so answer is 1। next, 2^48 divided by 17। now once again 17 is a prime number, इसको कुछ तो करके 16 बना देते हैं 48। कैसे बनाओगे? so this can be written as 2^48 can be written as 2^16 because 16 3s are 48 divided by 7। 8^16 by 17, so remainder is 1। next, 2^15 by 2^51 by 17, तो here it is 17, इसको 16 बनाना है, but the problem is that कि 51 is not divisible by 16, so ऐसा आ रहा है। ठीक है, so 2^51 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2^16, तो 48 तो चला गया, 51 में से 3 बच गया, so this is 2^, this is how we can write। so this is 8^16 into 8 divided by 17। दिस इज नथिंग बट 8^16 को 17 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है निकालो, और 8 को 17 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है वो निकालो। इसका रिमाइंडर हमको पता है, 17 इज अ प्राइम नंबर, 16 एक कम है, तो यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 1, एंड 8 by 17 का रिमाइंडर इज 8, सो 1 into 8 is 8, so आंसर इज 8। next is a very interesting and simple concept। suppose there is a number x and that number is completely divisible by 16, यानी कि अगर x को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो x को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर? कॉन्सेप्ट क्या है देखो, अगर इफ आई राइट द टेबल ऑफ 16, तो 16 का टेबल क्या होता है? 16, 32, 48, 64, 80। ठीक है, और हमें पता है कि 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 16 के फैक्टर्स है 8, 4, 2, 1, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 16। इसका मतलब क्या होता है ना कि जो भी नंबर 16 के टेबल में आता है वो सभी के सभी नंबर्स 8 के टेबल में भी आते हैं। तो ये 16, 32, 48, 64, 80 ये आपको 8 के टेबल में भी दिखेंगे, 4 के टेबल में भी दिखेंगे, 2 के टेबल में भी दिखेंगे,
What does this mean? This means that if any number is completely divisible by 16, then that particular number should also be divisible by the factor of 16. यानी कि अगर हम x by 8 करें तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए. x by 4 remainder should be 0, x by 2 remainder should be 0. This is one case. Suppose there is a number x such that when we do x divided by 16, we are getting the remainder as 1. यानी कि x is not completely divisible by 16. तो सिमिलरली उसी x को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1. 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1. 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1. Let's take the third case. Suppose there is a number x and if I am dividing it by 16, I am getting the remainder as 10. इट मीन्स दैट कि अगर उसी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 10 आना चाहिए. बट यहां पर कहानी में ट्विस्ट है. व्हाट इज द थिंग हियर? द रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिवाइजर, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये रिमाइंडर 8 से बड़ा तो होना ही नहीं चाहिए. इट शुड बी लेस देन 8. तो क्या करेंगे? एक बार और डिवाइड करेंगे और अभी आ गया रिमाइंडर. नेक्स्ट, x divided by 4, once again ideally the remainder should be 10, but we know that कि remainder can't be 10 because remainder can't be greater than divisor. तो वापस 4 से डिवाइड करेंगे, remainder आ गया. x divided by 2, remainder 10, so we'll do 10 by 2, so 10 by 2 का remainder is 0. Question कैसे होंगे? We have understood the concept. Let's see the question. A number when divided by 117 leaves 17 as remainder. So suppose this number is x. So if we do x divided by 117, remainder is coming as 17. If the same number means x, if it is divided by 13, what should be the remainder? This is the question. We know that 13 is a factor of 117 because 13 nines are 117. So ideally remainder 17 ही होना चाहिए. But remainder can't be 17 because the divisor is 13. तो एक बार और divide करके remainder is, this is the answer. Next question. A number being divided by 52 gives remainder 45. If the number is divided by 13, the remainder will be. It's the same as the previous question. Suppose the number is x and I am dividing it by 52. I am getting the remainder as 45. सेम नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? नाउ 13 इज अ फैक्टर ऑफ 52, सो रिमाइंडर हैज टू बी 45, बट रिमाइंडर इज टू बिग फॉर द डिवाइजर. तो वापस एक बार डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 6. नेक्स्ट, on dividing a number by 68 we get quotient 269. so suppose वो नंबर x है और इस x को अगर हम 68 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 269 और रिमाइंडर आ जाता है 0. ठीक है. ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 67 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? वेरी सिंपल. ये 269 को 67 से डिवाइड करना है एंड वॉट एवर बी द रिमाइंडर दैट इज योर आंसर. तो 269 डिवाइड बाय 67 करेंगे तो कितना होगा? 6 के टेबल में 226 आता है 4 पे. तो दिस इज 248. तो 269 डिवाइड बाय 67 करते हैं तो 4 248. 69 में से 48 गया तो 58 68 21. wait. On dividing a number by 68, we get 269 as the quotient. On dividing the same number by 67, what will be the remainder? Sorry, this is 268. Sorry, ये 268 है. So remainder is 1. Answer is option B. Next. In a division sum, the remainder is 0. रिमाइंडर इज 0. इसका मतलब क्या है? देखो फॉर्मूला ये होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर.
इस केस में क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो द फॉर्मूला इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। ठीक है। A student mistook the divisor by 12 instead of 21 and obtained 35 as the quotient. What is the correct quotient? ठीक है। सो एक स्टूडेंट ने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डिवाइजर 21, सो दिस इज द करेक्ट डिवाइजर, वो स्टूडेंट ने गलती से रॉन्ग डिवाइजर ले लिया 12, एंड ड्यू टू दैट ही गॉट 35 एज द क्वोशंट। सो डिविडेंड क्या हो जाएगा इस केस में, dividend is equal to, mistakenly he took 12 as a divisor, so he got the quotient as 35. So dividend is 12 into 35, but लेना क्या था डिवाइजर, 21 लेना था, तो उस केस में what is the correct quotient? So now the dividend is 12 into 35, डिवाइजर हमें लेना है 21, so what should be the quotient? So suppose the quotient is x, so x is equal to 12 into 35 divided by 20, 7 से डिवाइड करेंगे 3, 7 से डिवाइड करेंगे 5, आंसर इज 20. Option C is the correct answer. Next. A natural number n, when divided by 12, leaves a remainder of 7. So, एक natural number n है, उसको अगर हम 12 से divide करते हैं, तो remainder 7 आता है. ये question है. Find the remainder when the number is divided by 6. तो इसी number को अगर हम 6 से divide करते हैं, तो remainder क्या आएगा? So when we know that if we dividing a number by 12, we get the remainder as 7. तो 6 is a factor of 12. तो उस केस में भी remainder ideally 7 आना चाहिए था, but remainder can't be greater than divisor. तो वापिस एक बार divide करेंगे. So remainder is next. n square is divided by 12. यानी कि n square को 12 से divide करें. n square means n into n. नाउ वी नो दैट कि n को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो n को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7, हियर आल्सो रिमाइंडर 7, तो दिस इज 7 into 7 by 12, 49 by 12, 49 by 12 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1. नेक्स्ट, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये जो है ना n स्क्वायर के हमने टुकड़े कर दिए nn के फॉर्म में. नेक्स्ट, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 12. So once again, इसको भी n में टुकड़े कर देंगे. So this 3n square can be written as 3 into n into n. 2n can be written as 2 into n plus 1 divided by 12. Now, when we do 3 divided by 12, remainder is 3. n divided by 12, remainder is 7. Once again, n divided by 12, remainder 7. Plus 2 divided by 12, remainder is 2. n divided by 12, remainder 7. 1 divided by 12, रिमाइंडर इज 1, और इन सबको 12 से डिवाइड करें. ओके, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 7 करेंगे तो 147, तो दिस इज 147 डिवाइड बाय 12 प्लस 2 इंटू 7 14 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 147 को 7 से डिवाइड 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 3. 14 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 1 को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1. सो आंसर इज 6. सो रिमाइंडर इज 6. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और प्रैक्टिस से ये टॉपिक काफी इजी हो जाता है. So I hope you have understood this, and if you like my way of teaching, then please subscribe to my channel. मेरे जो वीडियोस होते हैं वो एक हफ्ते में 3 वीडियोस आई रिलीज एवरी वीक, एंड इफ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल तो आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे. So keep on practicing math because math is easy. Thank you.